Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. MBA CETs 2022, 23rd August afternoon slot, which is the first slot of MBA CET. इसका analysis we are going to do. This analysis is based on uh, interaction with 2 to 3 students which we have done. So in this we are going to discuss the paper pattern, level of difficulty, and are there any surprises in it? If you want to join us for MBA entrance training, you can connect on any one of these two numbers. We provide everything that is needed to help you join your dream school. So coming to the analysis, so paper pattern was jumbled up, जो एक काफी बड़ा confusion था कि paper pattern कैसे आने वाला है, sectional division रहेगा कि jumbled up रहेगा. So it is jumbled up and the questions were random. मतलब एक puzzle आप solve करोगे तो question number 1 वो puzzle करेगा, फिर question 50 वो puzzle करेगा, फिर question 75 वो puzzle करेगा. तो एक बार आप puzzle solve करोगे, so it is expected कि आप वो puzzle का diagram बराबर से बना के रखोगे, so that next 20-25 क्वेश्चन के बाद फिर से वो पजल के ऊपर क्वेश्चन आए तो आपको फिर से सॉल्व करने की जरूरत. अबाउट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन पेपर, बिट लेंदी एंड कट ऑफ्स आर एक्सपेक्टेड टू गो अप. है ना, एक स्टूडेंट तो मुझे बोला कि 160 जेबी का कट ऑफ जाएगा. ठीक है, बट अभी तक तीनों चारों स्लॉट्स होने के बाकी है. वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो अप लिटिल बिट. 160 वगैरह नहीं जाएगा, बट देन अगर 140 है तो 145 मैक्सिमम जा सकता है. ठीक है. टॉकिंग अबाउट कॉन सेक्शन, देयर वर 2 DI सेट्स, एक टेबल बेस्ड था, एक बार ग्राफ था. these questions were also not grouped. मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 5 टेबल ग्राफ के बार ग्राफ के ऊपर है तो क्वेश्चन 25 बार ग्राफ के ऊपर रहेगा, सेम बार ग्राफ के ऊपर, एंड क्वेश्चन 125 तो सेम बार ग्राफ के ऊपर रहेगा. सो ऐसा दीज वर नॉट ग्रुप. एक बहुत अच्छी चीज थी कि ईच मतलब हर एक सेक्शन का वेटेज ऑलमोस्ट जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा था. 50-55 क्वेश्चंस ऑन कॉन, 20 to 25 क्वेश्चंस ऑन एब्स्ट्रैक्ट, approximately 50 questions on verbal and 75 to 80 questions in LR section. ठीक है, अभी पूरा 200 क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन के वो गिनते नहीं बैठता, बट इक्वल वेटेज वाज गिवन टू, आई मीन गिवन टू ईच ऑफ द सेक्शन एंड जस्टिस वाज गिवन टू ईच ऑफ द सेक्शन. ठीक है. कौन सेक्शन की और बात करें तो सिंप्लीफिकेशन की कोई क्वेश्चंस नहीं थे. नंबर सीरीज के 8 से 10 क्वेश्चंस थे बट वर वेरी इजी. ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस वर ऑन डेटा सफिशिएंसी. ठीक है. एंड कुछ कुछ डेटा सफिशिएंसी के स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस वर बेस्ड हैविंग 4 स्टेटमेंट्स एज वेल. ठीक है. इक्वेशंस के 2 क्वेश्चंस, रेशो के 2 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन. मैथ्स वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी. पिछले साल के स्लॉट 1 के कंपैरिजन में मैथ्स का इस साल का स्लॉट इजी था. है ना, जैसे पिछले साल के मैथ्स में हायर मैथ्स पूछा गया था, लॉगरिथम एंड इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चंस थे. है ना, वैसे क्वेश्चंस इसमें नहीं थे. maximum questions were asked maximum questions were asked on arithmetic only, no geometry was asked. Okay, one more analysis which we have got, con section easy to moderate is what the student is saying. Then coming to abstract reasoning was bit moderate, and the student is also saying doable but difficult. ठीक है. There were around 10 questions on series, 2-3 questions on analogy, 2-3 questions on water image, mirror image. ऐसे questions थे. Sequence से maximum question होते. So this is what the student is saying. ठीक है. Coming to verbal section, there were total 4 RCs. 1 RC was tough and 3 RCs were easy. The questions in RC were grouped. This was a good thing. So अगर 5 questions है RC पे, so these questions were grouped, unlike in DI and in puzzles. ठीक है. Grammar questions were not that much, and there were only 5 to 6 grammar questions, and they were easy. Fill in the blanks के भी काफी questions थे. ठीक है. Then coming to LR section, which has maximum number of questions. Direction sense related puzzle था. 75 to 80 questions were there in direction sense. Critical reasoning के 15 question थे. Many questions on data sufficiency in LR as well. 2 puzzles questions again not grouped. ठीक है, मतलब आड़े टेढ़े questions आ गए थे. Decision making के 5 questions थे. Decision making has made a comeback. बहुत सालों से decision making नहीं आता था, but एकदम easy level का decision making के क्वेश्चंस थे. क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के कुछ क्वेश्चन नहीं थे. क्वेश्चंस मेजॉरिटी पूछे गए थे सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग,
एंड देन डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन काफी क्वेश्चंस थे, एंड वेरी इजी पजल्स. सो पजल्स बहुत इजी हो गए, है ना. दिस वाज द फीडबैक व्हिच वी हैव गॉट. कट ऑफ इसलिए ऊपर जाएगा, सब लोग इसलिए बोल रहे हैं कट ऑफ ऊपर जाएगा क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में द पजल्स आर वेरी इजी. ठीक है, सिंगल क्वेश्चन पजल्स भी बहुत थे, है ना, कि मतलब रैंकिंग लगाओ कि ये 6 लोग हैं, वो अपने हाइट के ऑर्डर में रैंकिंग लगाओ, ऐसे सारे क्वेश्चंस भी थे. देयर वाज नो इनपुट आउटपुट एज वेल, है ना. तो एलआर सेक्शन में मेजॉरिटी इट वाज कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस. ठीक है, एंड ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस रिलेटेड पजल्स भी पूछे गए थे. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कट एनालिसिस. और इन डेप्थ डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे और स्टूडेंट से बात करेंगे, उसके रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ वीडियोस आज रात तक हम अपलोड करेंगे. गो थ्रू दोस वीडियोस, आपको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा. If there is anything which we have missed, you please post it in the comment section so that students from other slot are benefited from it. Any other query, or if you want to correct us, you can connect on any one of these 3 social media platforms or visit our website tarkashastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.